Hello, how are you all? I hope you all are fine and enjoying with your family. Welcome to Yardland International School, Chitipur. And I am your teacher from Yardland International School, Chitrakoot. My name is Maushmi Kumari. I am taking your class 7 and the subject science. Okay, beta? So take out your book, your notebook and your pen. So children, this is your class 7 science book, Amazing Science. Okay बेटा, so take out your book. हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है बेटा, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी तक हमने बेटा पढ़ लिया था. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ तक हमने पढ़ा था. तो हमने डिस्टेंस फ्रॉम सी तक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे ओशन करेंट्स से. ठीक है, शुरू करते हैं. वार्म ओशन करेंट्स मेक्स द क्लाइमेट वार्म एंड वेट. कूल ओशन करेंट्स मेक्स द क्लाइमेट कोल्डर एंड ड्राई. जो वार्म ओशन करंट होता है वो क्या करता है कि क्लाइमेट को वार्म और ड्राई वेट करता है. और जो ओशन करंट जो होता है वो अगर कूल होता है तो क्या होता है, क्लाइमेट कोल्ड और ड्राई हो जाते हैं. नेक्स्ट करते हैं आई नीनो इफेक्ट. El Nino refers to the irregular warming for surface water in the Pacific. The warmer pumps energy and moisture into the atmosphere, altering global wind and rainfall patterns. El Nino affects when the rainfall pattern has been blamed for drought and flood in countries around the Pacific Rims. The phenomenon has caused tornado in Florida, smog in Indonesia, and forest fires in Brazil. In our country, the monsoon rains are largely influenced by El Nino effect. जो नीनो इफेक्ट होता है बेटा वही कॉज होता है किस चीज़ का. जैसे इंडोनेशिया में क्या होते हैं आपका स्मॉग हो जाता है, फ्लोरिडा में टॉर्नेडो आता है, ये सभी जो है क्या होते हैं नीनो इफेक्ट से ही होते हैं. और हमारे देश का मानसून भी है वो नीनो इफेक्ट से ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, माउंटेन्स के बारे में देखते हैं हम. Climates in effect by mountains. Mountains receive more rainfall than lying area because the temperature on the top mountain is lower than the temperature of sea level. That is why you often see snow in the top of the mountain in all year around. The higher ocean place above sea level is more colder. This happens because as altitude increases, air and becomes thinner and it is able to absorb only a small amount of heat. ये इसलिए होता है, माउंटेन क्या होता है टॉप पे होता है, इसीलिए वहाँ क्या होता है ठंड रहती है और हमेशा जो सी लेवल के हिसाब से वहाँ हमेशा ठंड रहती है. इसीलिए आप हमेशा देखते हो कि माउंटेन जो है वो स्नो से क्या होता है ढका हुआ होता है और वहाँ जो सन रेज हैं वो उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं हो पाती है. इसीलिए वहाँ का की जो हवाएं होती है वो ठंडी होती है, थिनर पतली हो जाती हैं. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ प्रिविलेज विंड. The direction of previous wind from the sea ocean side bring rain to the coastal areas and dry weather to island area. As a result, the climate of the area नियर सी इज़ मॉडरेट. और जो डायरेक्शन होता है प्रिविलेज विंड का क्या होता है, प्रेजेंट विंड फ्रॉम द सी, जो हवा बहती है ठीक है वो क्या करती है, रेन लाती है. ठीक है, और क्या होता है कि वेदर को जो है ना वो जो बहुत ज़्यादा वो मॉडरेट रखती है. इसीलिए सी के पास का जो जगह होता है उसका जो वेदर होता है वो हमेशा बहुत ही मॉडरेट होता है. यानी कि ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंडी होती है, मॉडरेट एक जैसा मौसम वहाँ रहता है. Climate and adaptation. Some animals are able to live in cold climate, some in moderate climate, and some extreme hot climate. Animals are adapted to survive in particular climate and in particular surroundings. The adaptation is due to evolution spread over the long period of time. Animals develop special features which help them
in living in their surroundings, features and habits that help animals adapt themselves to their surroundings is known as adaptation. एक एरिया में उस मौसम के हिसाब से जो कभी कोई जानवर जो रहते हैं उसे अडोप्टेशन कहते हैं। जैसे कि कोई बहुत ठंडी एरिया में रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रहते हैं और कोई कोई जो है वो बहुत नॉर्मल एरिया में रहते हैं, ठीक है। और ये अडोप्टेशन यानी कि ये जो मौसम के हिसाब से जो अपने आप को रहना सीख लेते हैं, इसे ही अडोप्टेशन कहते हैं। और ये एक बहुत लंबे समय के बाद ही हो पाता है, ठीक है। अडोप्टेशन इन एनिमल टू लिव पोलर रीजन। पोलर रीजन में कैसे होता है? पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड, स्नो कवर्ड एंड विंडी थ्रू आउट द ईयर। द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आर द पोलर रीजन। Polar bears, penguins, seals, whales, Antarctic fox, and whales are a few of wildlife that live in the cold region. ये जो जैसे कि कौन कौन से पेंगुइन, सील, वेल्स, ये सभी जो हैं वो पोलर रीजन में रहते हैं, जो कि बहुत ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो पड़ती है वहाँ, और वो वहाँ पर रहते हैं और उन्होंने उस चीज़ को क्या कर लिया है? अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं पोलर बियर के बारे में। थिक वाइट फर ऑफ पोलर बियर हेल्प्स देम इन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि आपको होता है ना कि बचाता है विद स्नोई सराउंडिंग, जो चारों तरफ बर्फ होती है उससे। दे आर नॉट इजीली स्पॉटेड बाय देयर हंटर्स एंड अदर एनिमीज। इसकी वजह से जो वो सफ़ेद होता है, वाइट होता है, इसी वजह से क्या होता है, वो हंटर्स के थ्रू नज़र में भी नहीं आ पाता है। दिस ऑल्सो हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। पोलर बेयर has a layer of fat under its skin, insulates them from cold and keeps its body warm. It has very strong sense to smell, और उनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल फर से ढकी होती है और लेयर बाय लेयर होती है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, वो स्नो से क्या होता है बेटा, बच जाते हैं, ठीक है। और उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो भी बहुत ज़्यादा तेज होती है, विच इज हेल्प टू लोकेट फिश अंडर द स्नो एंड कैच द फूड। दे आर ऑल्सो वेरी पावरफुल स्विमर। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर दे कैन क्लोज देयर न्यूट्रिस एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो क्या कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं और क्या करते हैं, बहुत अच्छे से स्विम करना, बहुत दूर तक स्विम कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक मैंने पढ़ाया। आपको मैं आज एक होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में आपको क्या करना है कि आपको खुद से कुछ पैराग्राफ्स वो पढ़ने हैं। जैसे मैं बता देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है पेंगुइन, सील, ठीक है, क्योंकि ये एक ही जैसे हैं, पेंगुइन के बारे में, सील के बारे में, ठीक है, पढ़ना है। और आपको क्या करना है, एडॉप्टेशन का पूरा जो ये पैराग्राफ है बेटा आपको खुद से पढ़ना है। ऐसे मैं समझाऊंगी आपको कल नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में पूरा समझा दूंगी, लेकिन रीडिंग बेटा आपको पूरी लगानी है, ठीक है। आपको कहाँ से कहाँ तक रीडिंग लगानी है? आपको रीडिंग लगानी है बेटा ये पेंगुइन से शुरू करके, ठीक है। पेंगुइन से पेज नंबर मैं आपको बता दे रही हूँ। पेज नंबर बेटा ये 7 का पेंगुइन से शुरू करना है और आपको ये चैप्टर पेज नंबर 8 तक का ये चैप्टर जो है आपको पूरा फिनिश करना है। ओके बेटा, आप सिर्फ रीडिंग करोगे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। ओके, दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि खुद से भी पढ़ना जरूरी है। ओके, थैंक यू, बाय।